ابا جان، اگر اسلام میں ڈیٹنگ حرام ہے تو میں شادی کیسے کروں گی؟ آپ ایسا سوال کیسے کر سکتی ہو؟ آپ ایسا سوال کیسے کر سکتی ہو؟ صرف مذاق کر رہا ہوں۔ کیا آپ ایک مثال دے سکتی ہیں جہاں آپ مجھ سے متفق نہ ہو؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ مجھے کیچپ کے ساتھ چکن کھانے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، یہ ایک جرم کی طرح ہے نا؟ ابا جان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے حال ہی میں حجاب پہننا شروع کیا ہے، تو مجھے یہ خوف تھا کہ میں حجاب کی وجہ سے پابند نہ ہو جاؤں۔ کیا میں حجاب پہن کر واقعی وہ سب کچھ کر سکتی ہوں جو میں چاہوں؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مذہب صرف دن میں 5 وقت نماز پڑھنے یا رمضان میں روزے رکھنے کا نام ہے اور بس۔ لفظ دین کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ آپ جس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں وہ دین ہے۔ تو جس طرح آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، جس طرح آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، یہ سب اسلام کے احکامات کے تحت آتا ہے۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا، شکریہ۔ میں تو یہ سوچ کر ہی پریشان ہو جاتا ہوں کہ آخر ایک دن آپ کی شادی ہو جائے گی۔ یہ اگرچہ بھی بہت دور ہے، لیکن جی ہاں، آپ کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لیکن مجھے بہرحال اس حقیقت کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ ہاں۔ السلام علیکم۔ آج کا دن میرے لیے واقعی خاص ہے۔ انشاءاللہ ایٹرنل پیسنجر کے یوٹیوب چینل کے لیے ہم اپنی بیٹی کے ساتھ پیار بھری گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ میرا نام سوال ہے، میری عمر 15 سال ہے، میں ہائی اسکول کی طالبہ ہوں اور میں ایٹرنل پیسنجر کی ویمن ٹیم میں بطور رضاکار کام کرتی ہوں۔ الحمدللہ، میرا نام احمد ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو نہیں جانتے، میں ٹورڈز ایٹرنیٹی میں کام کرتا ہوں۔ میں ایک میزبان ہوں اور انٹرویوز کرتا ہوں۔ میں کچھ ایسے سوالات لے کر آئی ہوں جو اکثر مسلم خواتین کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ ان کے جواب تلاش کرنا چاہتی ہیں، لیکن وہ پوچھنے کی ہمت نہیں کر پاتی ہیں۔ لیکن میرے سوالات اتنے آسان نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا آپ مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی میں تیار ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ابا جان، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے حال ہی میں حجاب پہننا شروع کیا ہے، تو مجھے یہ خوف تھا کہ میں حجاب کی وجہ سے پابند نہ ہو جاؤں۔ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا میں حجاب پہن کر واقعی وہ سب کچھ کر سکتی ہوں جو میں چاہوں؟ آپ ہمیں اپنی حجاب کی کہانی سنانا پسند کریں گی؟ یہ اچانک شروع نہیں ہوا، بلکہ میں نے ایک عرصے تک غور و فکر کیا کہ اس کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں۔ گویا میں نوٹ کر رہی تھی کہ جب میں حجاب پہنوں گی تو کیا ہوگا۔ اور آپ میرے پاس لسٹ لے جی کر آئیں ہاں۔ کہ حجاب پہننے کے 13 فائدے اور حجاب نہ پہننے کے نقصانات۔ جی ہاں۔ تو آپ نے ان سب کی لسٹ بنا لی۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جی ہاں، میں آپ بتا دوں، سکتے ہیں۔ ہم بعض اوقات آپ کو گروسری کے لیے بھیجتے، بریڈ، دودھ یا کوئی اور چیز لانے کے لیے، اور آپ ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا کرتی تھیں جیسے میں نہیں تم جاؤ جانا گے۔ چاہتی۔ آپ نہیں جانا چاہتی تھیں، تو آپ نے لکھا کہ اگر میں حجاب پہننے لگوں تو چونکہ مجھے اپنا سر ڈھانپنے میں وقت لگے گا، لہٰذا ہمیشہ بھائی ہی جایا کرے گا۔ جی ہاں، میرے خیال میں یہ ایک اور ویسے بہت اچھا واقعی میں فائدہ ایسا ہے، ہی ہوا۔ واقعی۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوا۔ ہم ہمیشہ اسی کو کہتے ہیں، کریم آج میں جاؤ۔ گروسری کے لیے نہیں جاتی، گویا یہ کریم کا ہی کام ہے۔ یہ آپ کے لیے کیا نام ہے؟ جی ہاں، یہ واقعی بہت اچھا ہے۔ الحمدللہ۔ تو میری حجاب کی کہانی یہ ہے کہ جس دن ہم عمرے پر گئے، میں نے حجاب پہننا شروع کر دیا، لیکن میرے دماغ پر مسلسل سوچیں حاوی تھیں، مثلاً میرے ارد گرد کے لوگ کیا رد عمل ظاہر کریں گے۔ جب آپ نے اسلامی اسکول جانا شروع کیا تو یاد ہے ہماری ایک خفیہ بات چیت ہوئی تھی۔ جی مجھے یاد ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بتا سکتی ہیں۔ میں نے آپ کو کال کی، چلو آج اکٹھے کچھ کھانے چلتے ہیں۔ مجھے واقعی حیرت ہوئی، میں سوچ رہی تھی کہ کیوں؟ باپ اور بیٹی، صرف ہم دونوں، تو آپ مجھے اس جگہ کیوں لے جا رہے ہیں؟ میں واقعی سوچ رہی تھی کہ کیا ہونے والا ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی واقعی۔ اور میں نے آپ کو بتایا، اور ویسے اسی حربے کا استعمال کیا تمہارے دادا کے ساتھ۔ میں نے اس لیے کہا کیونکہ آپ نے ابھی ابھی اس اسلامی اسکول میں جانا شروع کیا تھا، اور میں نے کہا آپ کا حجاب پہننے کے متعلق کیا خیال ہے۔ جی ہاں، مجھے یاد ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ صرف یہ شروع کر دیتی ہیں تو آپ جو مانگے میں وہ سب کچھ خرید کر دینے کو تیار ہوں۔ لیکن یہ اس سے صرف ایک دن پہلے کی بات ہے۔ جب میں نے جانا تھا یہ اچھا وقت نہیں تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں میرے بس پاس آپ کے صرف ایک ذہن میں دن ہے، بیج بونا چاہتا تھا۔ اور واقعی یہ واقعی اس نے کام کر کیا گیا۔ اور میں نے یہ تجویز پیش کی، اور پھر مجھے ہر وقت یہ خوف لگا رہتا تھا، اور آپ کی والدہ بھی اس بات سے خوفزدہ تھیں کہ اگر آپ غلط وجوہات کی بنا پر حجاب پہنتی ہیں تو ممکن ہے کچھ عرصے کے بعد آپ اسے اتار دیں اور آپ کسی صدمے کا شکار ہو جائیں۔ تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ حجاب کے ساتھ خود کو قید محسوس کرتی ہیں، کیونکہ اب آپ دونوں کا موازنہ کر سکتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ میری زندگی میں کوئی بھی خاص تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ میں ان سب جگہوں پر جا سکتی ہوں جہاں میرا مذہب مجھے اجازت دیتا ہے۔ تو گویا حجاب مجھے ان جگہوں پر جانے سے روکتا ہے جہاں در حقیقت میں جانا بھی نہیں چاہتی۔ میں کچھ جگہوں پر جا سکتی ہوں، تو میں وہ سب کچھ کر سکتی ہوں جو میں چاہتی ہوں، البتہ یقیناً اپنے مذہب کے مطابق۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، آپ کا حجاب آپ کو قید نہیں کرتا۔ آپ اپنی سہیلیوں سے مل سکتی ہیں، آپ کیفے جا سکتی ہیں، آپ بیٹھ سکتی ہیں، آرام کر سکتی ہیں،
आप छुट्टियां मना सकती हैं। वाकई मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ जी, जायज बिल्कुल। तरीके से। जी हाँ अब्बा जान, अगर इस्लाम में डेटिंग हराम है तो मैं शादी कैसे करूँगी? ऐसे मामलात में मुझे किस तरह बर्ताव करना चाहिए? और मिसाल के तौर पर मुझे जब लगे कि मुझे कोई पसंद है तो मुझे क्या करना चाहिए? आप ऐसा सवाल कैसे कर सकती हो? सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा, क्योंकि अगर आप ये सवाल मुझसे ना पूछती बल्कि दूसरे लोगों से पूछती तो मुमकिन है कि आपको गलत गाइड किया जाता और ऐन मुमकिन है कि आप कोई बुरा या नामुनासिब काम कर बैठती। तो वाकई ये सवाल करने के लिए आपका शुक्रिया। इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं जानता हूँ कि आप कुछ खौफ महसूस कर रही थी, लेकिन इसमें कोई मैंने हर्ज खुद को नहीं ये है। सवाल पूछने के लिए तैयार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ये सोचकर ही परेशान हो जाता हूँ कि एक दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम ये घर छोड़ जाओगी, लेकिन मुझे बहरहाल इस हकीकत का सामना करना ही होगा। ये अभी बहुत दूर है, लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है कि ऐसा होना ही है, तो आपको ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इस्लाम आपको इससे मना नहीं करता कि आप जिससे शादी करने का इरादा रखते हैं उससे मुलाकात कर लें। यहाँ तक कि आप अपने वालिद को भी बता सकती हैं कि मुझे ये शख्स पसंद है, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता है, आपको इससे मुलाकात करनी चाहिए। यहाँ तक कि आप इससे पहले कि दूसरा शख्स आपके पास आए, आप मेरे पास आकर मुझे बता सकती हैं और ये वाकई आपकी तरफ से एक बेहतरीन अमल होगा। तो इन ताल्लुकात में जो हिस्सा मुतासिर होता है हमारी खवातीन के जज्बात का ख्याल कौन करता है? क्योंकि आप नाजुक हो, आप हसास हो। इस्लाम इसका ख्याल रखता है। और अगर आपको लगता है कि आपकी भी यही तरजीहात हैं और आप इस शख्स को पसंद करती हैं जिससे आप ज़ाती तौर पर जानती हैं और वो शख्स आपके म्यार पर पूरा उतरता है, एक खास म्यार पर, और हाँ सबसे बढ़कर ये कि वो हम मजहब होना चाहिए बिलाशुबा, और फिर शादी के लिए बात बढ़ाई जा सकती है इंशाअल्लाह। चनाचे इस्लाम का मकसद खवातीन के वकार का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इस्लाम खानदान का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है। इस्लाम ये नहीं चाहता कि माएँ अपने बच्चों के बगैर बाप की परवरिश करें। चनाचे इसमें भी हमारे मज़हब की एक हिकमत है कि उसने हमें फ्लर्ट करने की इजाज़त नहीं दी। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्हें नमाज़ों की पाबंदी में बहुत मुश्किल पेश आती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? मसलन आप कैसे बाकायदगी से नमाज़ें पढ़ लेते हैं, या ये कि ये सब अचानक शुरू हो गया था, या फिर ये मामूल आहिस्ता आहिस्ता बना? जब मैं पूरी तरह से बाअमल नहीं था, मैं अपने आप से कहता था, और सिर्फ यही चीज थी जिसने कुछ अरसे तक मुझे मजहब से जोड़े रखा, और मैं ये कहता था कि अच्छा नमाज बहुत जरूरी है, लिहाजा मुझे ये आदत डालनी होगी। और मैंने आपको बताया कि अब हम इकट्ठे बाजमात नमाज अदा करेंगे, वो तमाम इशा की नमाजें जो हमने बाजमात अदा की। और जाती तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि फिर आप अनकरा चली गईं अपने नाने हाल में, और वहाँ आपने अपने नाना नानी से मुलाकात की। और इससे पहले मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह इन्हें तौफीक अता फरमा कि वो बाकायदगी से 5 वक्त की नमाज अदा करने लग जाएं। या अल्लाह एक मौका अता फरमा, एक मौका कि वो सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ सकें। आप बताएं कि वहाँ क्या हुआ? मेरे नाना जान, उन्होंने हमें 10 लीरा देने का फैसला किया हर एक नमाज अदा करने के बदले। जी बाजमात। और उस वक्त ये वाकई एक अच्छी तरगीब थी। गोया कि उस वक्त मैं ये सब पैसे के लिए कर रही थी, और मेरा मकसद उस वक्त गोया 10 अल्लाह की लीरा भी रजा अच्छी नहीं खासी थी। रकम होती जी हाँ, थी। ये एक माकूल रकम थी, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ नीयत तब्दील हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कि अल्लाह की रजा हासिल करूं। जी हाँ, ये मेरे लिए वाकई एक अच्छी तरगीब थी। गोया मेरे नाना ने मेरे दिल में नमाज की मोहब्बत पैदा करवा दी। और आप एक हफ्ते बाद वापस आईं और आप दिन में 5 बार नमाज अदा करने लगी थीं। ओह खुदाया, ये बहुत अचानक हुआ था कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआओं को कबूल कर लिया। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा था। तो आपने ये दुआ वाकई खुलूस दिल से की वाकई थी। ये खलूस दिल से की हुई दुआ थी। हर किसी के नाना नानी ऐसे नहीं हो सकते जो एक नमाज के लिए 10 लीरा दें। तो कोई काबिल अमल तरीका तो जरूर होगा, है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने 5 अलाइव नामी एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जो 40 दिन तक आपकी नमाजों का रिकॉर्ड जमा करती है। ये खेल की तरह बनाई गई है, और जब आप एक दिन की तमाम नमाजें अदा कर लेते हैं तो आपके बाग में एक नया दरख्त लग जाता है और आपको एक नया फूल मिलता है। तो एक वाकई बहुत बड़ा खूबसूरत बाग हासिल करने के लिए आप इन चीजों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जी ये एक बिल्कुल। तरह की तरगीबी और नौजवानों के लिए एक पुरकशिश सरगर्मी है। अगर हमारे फॉलोअर्स चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ये ऐप आपका रिकॉर्ड रखेगी। 40 दिन के बाद आप नमाज पढ़ने के आदी हो जाते हैं। इसे जारी रखना आपके लिए बेहद आसान होगा इंशाल्लाह। तो मेरे लिए ये कुछ यूं हुआ कि अचानक तकरीबन 1 हफ्ते में, क्योंकि इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन आपके लिए क्या था? मसलन आप कैसे बाकायदगी से नमाजें पढ़ लेते हैं? नेस मेरे वालिद हमें हर नमाज के लिए बुलाते थे, खास तौर पर जब वो मगरिब के बाद घर आते तो हम सब इकट्ठे होते थे, मसलन 7 अफराद, मेरे 4 बहन भाइयों समेत। अल्हम्दुलिल्लाह हमें आदत पड़ गई। लेकिन मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि जब आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ कम हो जाता है, आपकी नमाजें भी ज्यादा ढीली हो जाती हैं और आप इस रिश्ते को खो भी सकते हैं। चनाचे आप दिन में एक नमाज तक भी जा सकते हैं। लिहाजा हमें हर वक्त अपने ईमान पर मेहनत करनी है, क्योंकि दिल की हालत बदलती रहती है। ये इल्म की तरह नहीं है। क्या आपको सर्दियों की छुट्टियां याद हैं जब हम उस पहाड़ पर गए थे? जी मुझे याद है। बराए करम आप बताएं। सर्दी का मौसम था और हमने अपने कजन्स के साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा था।
इसी दौरान फिर नमाज का वक्त हो गया, तो हमने नमाज के लिए जगह ढूंढी जहाँ पानी मौजूद था, लेकिन पानी बहुत ठंडा था हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी, है ना? और मैंने उस सूरत हाल में वज़ू किया। उस वक्त मैं खुद को एक हीरो की तरह महसूस कर रही थी, क्योंकि वो वाकई एक मुश्किल सूरत हाल थी। अल्हम्दुलिल्लाह। आप जानती हैं मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ वुजू कर सकती हैं हाँ, तो आपको किसी दूसरी जगह वुजू ना करने का कोई बहाना मुझे नहीं याद मिलेगा। है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाकई एक अहम मोड़ था। टुवर्ड्स इटर्निटी में हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम एक फलाही तंजीम हैं जिसका अज़्म इस्लाम के पैगाम को 10 ज़बानों में दुनिया भर में फैलाना है। अपनी सपोर्ट से आप लोगों को इस्लाम में दाखिल होने, हराम काम छोड़ने, नमाज शुरू करने जैसे आमाल में मदद दे सकते हैं और इन तमाम नेक आमाल के बदले अजर अजीम पा सकते हैं इंशाअल्लाह। टुवर्ड्स इटर्निटी को अतिया दें और इस सुनहरे मौका को ज़ाया ना होने दें। अब्बा जान, हर नौजवान की तरह मुझे भी कभी कभी आपके साथ चलना बहुत मुश्किल लगता है, ख़ास तौर पर इस उम्र में जब हमारे दरमियान इख्तलाफ राय में इजाफा हो जाता है। तो हमारा मज़हब इस हवाले से हमें क्या हिदायत देता है? मसलन हमें बाहैसियत नौजवान किन रवैयों पर तवज्जो देनी चाहिए? क्या आप एक मिसाल दे सकती हैं जहां आप मुझसे मुत्तफिक ना हो? आपके जहन में क्या आता है? आप मुझे केचप के साथ चिकन खाने की इजाज़त नहीं देते। ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है? बराए करम नहीं। क्यों नहीं? मैं इसे खा सकती हूँ। ये एक जुर्म की तरह है ना? मायोनीज और चिकन ठीक है, लेकिन केचप और चिकन तो मैं इसे कबूल नहीं कर सकता। लेकिन आप जानते हैं, यहाँ तक कि मैं जब चिकन हो तो रेफ्रिजरेटर और से मैं खुद केचप जाकर लाता ले ही आती नहीं। हूँ। मुझे मालूम है, लेकिन हाँ, बिलाशुबा ये इन चीजों में से एक है जो मैं वाकतन बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मैं सीख जाऊंगा इंशाल्लाह। मैं सीख लूंगा कि कैसे ज्यादा बर्दाश्त करूं। इंशाल्लाह, मुझे ठीक है, उम्मीद इंशाल्लाह। ठीक है, वैसे मजाक से हटकर मैं कभी कभी देख लेता हूँ जब आप मुझसे मुत्तफिक ना हो, आप सिर्फ अपनी आंखें घुमाती हैं और आप कहती हैं ओ, मैं ये चीजें देखता हूँ। आप इन चीजों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ठीक है, ये नॉर्मल है, मैं इसे कबूल करता हूँ, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और आप बहुत बाअदब हो। मुझे मालूम है कि आप हमारी दिल चिकनी नहीं करना चाहती, और जाहिर है अपनी वालिदा की भी, लेकिन ये नॉर्मल है। हम बहसियत वालिदैन हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे जैसे ही हों, लेकिन अल्लाह ने आपको एक मुख्तलिफ शख्सियत के साथ पैदा किया है और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। हमें मजबूरन इख्तलाफात का सामना करना ही होगा। ये सिर्फ एक मजाक है। केचप चिकन मैं इसे कबूल कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, मुझे इख्तलाफ का एहतराम करना होगा। लेकिन आपको ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि चूंकि आप नौ उम्र हैं और आपके पास तजर्बा नहीं है, तो मुमकिन है कि आप चीजों को सिर्फ एक ही जाविये से देखें, एक ही नुक्ता नजर से, और ये चीज आपको गुमराह कर सकती है। तो आपको हमसे मशवरा करना चाहिए कि हमें अपनी राय के बारे में बताएं, क्योंकि हमारी नजर ज्यादा वसी है। जहाँ तक मजहब की बात है तो हाँ, ये एक अलग चीज है। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला चाहता है कि हम अपने वालिदैन की अतात करें, लेकिन अगर वो ऐसी बात कहते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं, तो आप अपने वालिदैन की बात नहीं मानेंगे। आपको कुछ कहने का हक तो हासिल है ना? वैसे मुझे भी आपकी उम्र में ऐसा ही महसूस होता था। मैं भी सोचता था कि मेरे वालिदैन मुझे समझते क्यों नहीं हैं, उनके ऐसे जी ख्यालात हाँ, क्यों बाज़ हैं। औक़ात वो नहीं समझते। लेकिन जब मैं उनकी उम्र को पहुंचा, जब मैं वालिद बन गया, तो मुझे समझ आई कि वो सही थे। अगर हम अच्छे काम करें तो इसका सवाब आपको भी मिलता है, लेकिन इस तरह अगर आप बुरे काम करते हैं तो उसका गुनाह भी हमें मिलता है। लेकिन मैं मुस्बत सोच रही हूँ। जी वाकई इसका मनफी पहलू भी है, लेकिन हाँ, मेरे ख्याल में ये एक बड़ा फ़ायदा है और इस वजह से आप हमारी गलतियों को ठीक करते रहते हैं। मैं जानता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह नेक अमाल आपके लिए भी फायदेमंद साबित होंगे और हमारे लिए भी, और ये विरासत जारी रहनी चाहिए। अच्छा, एक 15 साल नौ उम्र लड़की के तौर पर क्या मेरी कोई प्राइवेट लाइफ हो सकती है, या मुझे आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा? यकीनन आपको अपनी जिंदगी के बारे में हर चीज हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप कुछ प्राइवेसी रख सकती हैं और बिलाशुबा हम इसका एहतराम करते हैं। आप अपनी सहेलियों से मिल सकती हैं और आप उनसे लंबी फोन कॉल्स पर बातें कर सकती हैं, बिल्कुल जैसा कि आप करती हैं। लेकिन जब कुछ ऐसी चीजें हों जो आप खुद हल नहीं कर सकती, और आप उलझन में हों, और आपके ज़मीर में कुछ बोझ हो, और वो मसाइल जो आप खुद हल नहीं कर सकती, जी हाँ, मुझ पर एक ऐसा वक्त आया था। तो हम आपके लिए यहाँ मौजूद हैं बिलाशुबा हमेशा। और ये वाकई अहम है, क्योंकि अगर आप हमारे पास आने में हिचकिचाती हैं तो ये हमारा मसला है। हो सकता है कि हमने आपको सख्ती से जवाब दिया हो, या शायद नामुनासिब तरीके से, या ये कहते हुए कि आप हमसे सवाल कैसे कर सकती हो, या हमने आपको डराया हो। तो ये एक ऐसा मसला है जिसका ताल्लुक हमारी जात से है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप ऐसे नहीं हैं। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप वाकई इन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। यकीनन हम बाज़ औक़ात तनकीद पसंद या परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं, लेकिन हमें हर वक्त इस बात को जहन में रखना होगा कि अल्लाह ने आपको बतौर इमानत हमारे सपोर्ट किया है। वालिदैन होने के नाते हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि जिन रास्तों पर आप चलने जा रहे हैं हम उन रास्तों पर सफर कर चुके हैं, और हम जानते हैं कि आपको यहाँ किन खतरात और किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा हमारे पास तजर्बा है। इसके साथ साथ जब आपको कुछ गलत नजर आता है तो यकीनन चूंकि आप अपने मजहब में भी तरक्की कर रही हैं, तो आप जानती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अल्लाह के अहकाम
इस्लाम की तालीमात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के लिहाज से इस पर आप हमें भी टोक सकती हैं। मजीद ये कि मुझे मालूम है कि हमें ये आदत नहीं बना लेनी चाहिए कि आपके हर मसले पर कहें ओके ऐसे कैसे हो सकता है, अब ये एक मुसीबत बन जाएगी। हमें भी ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा मकाम आ जाता है जब कोई बेटी, जब कोई लड़की अपने मसाइल खुद हल नहीं कर सकती और गलतियों पर गलतियां करती चली जाती है। और एक मकाम ऐसा भी आ सकता है कि ये एक बहुत बड़े बर्फानी तोते में बदल जाता है। ये वाकई अफसोसनाक चीजें हैं लेकिन संजीदा चीजें हैं। तो ये रिश्ता, ये सेहतमंद रिश्ता खानदान के दरमियान होना जरूरी है। मेरी राय है कि आप वाकई कामयाब हैं। वाकई? जी हाँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही लगता है। अब्बाजान, क्या ये मेरे लिए गलत या फिर शर्मनाक है कि मैं अपने अकीदे के बारे में सवाल उठाऊं? क्या आप अपने ईमान पर सवाल उठा रही हो? मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं वाकई डर गई थी। ओके, मैं वाकई डर गई थी। आपकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा मत करें। जाने दो, आपको तो मेरे मजाक की आदत है। वो तो है, नहीं लेकिन कोई बात ऐसे नहीं। मजाक की नहीं। इतना बड़ा चेहरा जैसे, तो दोबारा ऐसा मत करें, ठीक है? आपका शुक्रिया। तो जैसे मुझ पर एक ऐसा दौर गुजरा जिसमें मैं हमेशा सवाल करती थी, सोचती थी कि क्या ये वाकई हक मजहब है? क्या आप पर भी ऐसा वक्त आया था? अगर आया था तो क्या आप शेयर कर सकते हैं कि आपने उससे कैसे निपटा? ये वाकई एक संगीन मसला है। तो ये मुकम्मल तौर पर नॉर्मल है और ये काबिल कबूल नहीं है। खास तौर पर हमारे मजहब में काबिल कबूल नहीं है कि मजहब वालिदैन से विरासत के तौर पर ही कबूल किया जाए, क्योंकि आप इसलिए मुसलमान नहीं है कि चूंकि आपके वालिद और बाकी वालिदा कुछ मुसलमान है। नौजवानों से जब सवाल किया जाए मसलन कि तुम मुसलमान क्यों हो, तो कहते हैं क्योंकि मेरे वालिद और मेरी वालिदा। लेकिन आपको सवाल करना चाहिए, आपको तहकीक करनी चाहिए। हमारा मजहब दिल, दिमाग और जमीर सबके साथ कबूल किया जाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार फरमाता है, तुम अपनी अकल को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तुम सोचते क्यों नहीं? तुम गौर क्यों नहीं करते? तुम गौर फिक्र क्यों नहीं करते? अल्लाह ताला हमें दीन के बारे में सोचने की तरकीब देता है, उन चीजों के बारे में जिन पर हमें ईमान लाना है। अगर हमारी बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो इमारत तो गिर ही जाएगी। लिहाजा बिल्कुल। अगर मैं आपको कहूँ कि ये चाय कारपेट पर गिरा दो तो आप क्या कहेंगी? क्यों, किस क्यों, लिए? किस लिए? लेकिन अगर मैं आपको वजह बताऊं कि मैं क्लीनर को ला रहा हूं और आप देखेंगी, हम टेस्ट करेंगे कि इस क्लीनर की वो पावर क्लीनर कैसी है। मेरी वालिदा नहीं होंगी। नहीं, लेकिन फिर आप कहेंगी ठीक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं इसकी वजह जानती हूँ। क्योंकि बिल्कुल इसकी वजह जानती हैं। अगर आप वजह जानते हैं कि आपको एक खुदा पर ईमान क्यों रखना चाहिए, आपको आखिरत पर यकीन क्यों रखना चाहिए, आपको ये क्यों मानना चाहिए कि फरिश्ते मौजूद हैं और कुरान पाक के मौजज़ात, जब आप इस बुनियाद को जानते हैं, जब आपके पास बुनियाद है, तो फिर आप इस पर इबादत की तामीर कर सकते हैं। ये नमाज, रोजा, ये हिजाब, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक और बात, अगर हमारा मजहबी लेवल मिसाल के तौर पर 100 है, अगर मैं वो आपको मुंतकिल करता हूँ तो वो 80 हो जाएगा, और आप जब अपने बच्चों तक पहुँचाते ये हैं हिसाब तो किताब ये मुझे 60 रह मालूम है। जाएगा। तो फिर मजहब 3 या 4 नस्लों में खत्म हो जाता है। बल्कि इससे भी पहले आपको हमसे आगे बढ़ना होगा, हमें पीछे छोड़ना होगा। अगर हम 100 पर हैं तो आपको 120 पर होना चाहिए ताकि आप इसे आगे और मिसाल के मुंतकिल तौर कर पर मेरे सकें। बच्चों को 140 पर होना जी चाहिए। हाँ, इसी तरह हम ईमान को महफूज रख सकेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, मेरे दोस्त कभी कभी मुझे ऐसी जगहों पर इनवाइट करते हैं जो मजहबी तौर पर मुनासिब नहीं होती हैं, और वह हैं भी ऐसे लोग जिन्हें मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो फिर मैं उनको नाराज किए बगैर ना कैसे कह सकती हूँ? बिल्कुल, कुछ लोगों का ख्याल है कि मजहब सिर्फ दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ने या रमजान में रोजे रखने का नाम है और बस। नहीं, इस्लाम जिंदगी गुजारने का एक तरीका है। लफ्ज दीन का मतलब है जिंदगी गुजारने का तरीका। वाकई? आप जिस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं वो दीन है। तो जिस तरह आप लोगों के साथ बैठते हैं, जिस तरह से आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं, जिस तरह आप लोगों के साथ मामलात करते हैं, ये सब इस्लाम के अहकामात के तहत आता है। मैं आपके साथ जाता हूँ और वापस आकर नमाज पढ़ लेता हूँ, नहीं। आपके लिए जरूरी है कि खुद को खराब माहौल से बचाएं। मैं ये नहीं कहता कि वो बुरे लोग हैं, लेकिन उनकी आदतें बुरी हैं। अगर आप खुद को बुरी आदत से घेर लेते हैं तो वक्त के साथ साथ आप उन्हें नॉर्मल चीज समझना शुरू कर देंगे और मुमकिन है कि आप सोचने लगे, ओके ये गलत क्यों है, इसमें तो वाकई कोई बुराई नहीं है। आप इसके आदी हो जाते हैं। आपको वो मशहूर हदीस मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, कि अगर कोई शख्स गुनाह करता है उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है, फिर अगर वो तौबा नहीं करता और उन गुनाहों को बार बार करता रहता है तो उसका सारा दिल स्याह हो जाता है। जब तक वो इस गुनाह से निकल नहीं आता तो ये सीरियस मसला है। हमें गुनाह की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाना चाहिए। और इसके अलावा बहुत से लोग मिलकर शराब पीते हैं और नौजवान लोग जब इकट्ठे होते हैं, यकीनन आपकी उम्र में नहीं लेकिन मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है। इसके बारे में एक हदीस है, और जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है फिर वो इस दायरे में नहीं बैठेगा जिसमें खमर यानी अल्कोहल गर्दिश करती है। हमें ऐसे माहौल में नहीं होना चाहिए। जी हाँ, इसके अलावा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कौल है, वो फरमाते हैं, चाहे आप वो गुनाह ना भी कर रहे हो लेकिन हमें उस माहौल में नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने कीदे के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते
तो आप जैसी जिंदगी गुजारते हैं वैसा अकीदा अपनाने लग जाओगे। एक मुसलमान होने के नाते मेरे लिए ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मेरे आसपास के लोग मेरी शनाख्त को कबूल करने लग जाएं? मुझे समझ नहीं आती कि रोजमर्रा जिंदगी के मामूलात में माहौल की जिस प्रेशर का मुझे सामना होता है मैं उससे कैसे निपटूं, खासतौर पर ऐसी सूरत हाल में जहाँ मेरे साथ मेरे मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक किया जाता है। मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, एक बार फिर वही कहूंगा, अपने इत्माद और अमल के जरिए। और मुझे याद है कि आपको तो इसका तजुर्बा प्राइमरी स्कूल में हुआ भी था जब जी आप हाँ, चौथी मेरे से जमात में बिल्कुल थी। ऐसा हुआ क्या आप था। हमें बता जी, सकती हैं? एक बार एक बर्थडे पार्टी थी और सब कुछ ना कुछ खा रहे थे, जैसे लेकिन ये रमजान था, है ना? जी हाँ, ये रमजान का महीना था और मैं रोजे से थी, लेकिन पूरी क्लास में मैं सिर्फ अकेली थी जिसने रोजा रखा था। तो मैं बैठकर सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। क्योंकि वो केक पेश कर रहे जी थे, हाँ, वो है ना? केक पेश कर रहे थे। तो मेरी एक दोस्त की वालिदा आई और कहने लगी आप खा क्यों नहीं रही? तो मैंने कहा मैं रोजे से हूँ। तो वो बहुत हैरान हुई, कुछ शर्मिंदा सी भी लग रही थी। तो वो वाकई हैरान हुई और मेरा ख्याल है कि उन्हें इस बात का अफसोस हुआ कि क्योंकि वो उन्होंने केक रोजा पेश नहीं कर रहे थे, रखा। है ना? जी जी, उन्होंने एहतराम किया। ये तो बिल्कुल उलट सूरत हाल हो गई। उन्होंने आपकी हालत का एहतराम किया, लेकिन कुछ जगहों पर लोग ऐसे नहीं करते। हो सकता है कि वो एहतराम ना करें, मैं खुद को तन्हा महसूस कर रही थी, लेकिन हाँ, लेकिन मेरे बैक साथ ये वक्त हुआ। फख्र भी महसूस कर रही थी, है ना? यकीनन मुझे उस दिन वाकई अपने आप पर फख्र महसूस हुआ। वैसे मुझे उस दिन आप पर वाकई फख्र था, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ऐसी परवरिश सिरे से नहीं हुई होती। उनके मुख्तलिफ नजरियात हैं, वो मजहब मुखालिफ नजरियात रखते हैं, लिहाजा वो वाकई इम्तियाजी सलूक इख्तियार कर सकते हैं। मुमकिन है कि वो सोचें कि वो ऐसा दुनियावी वजूहात की बिना पर कर रहे हैं। हो सकता है कि वो सिर्फ ताकत हासिल करना चाहते हो, मजहब की वजह से असर और रसूख हासिल करना चाहते हो, वो दिखावा करना चाहते हो, वो दूसरे लोगों को दिखाना चाहते हो कि हम अच्छे लोग हैं, नमाज पढ़कर या कोई और अमल करके। हमें ऐसे लोगों पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके पीछे मौजूद ज़हनियत पर तनकीद करनी चाहिए। लिहाजा हमें इसकी सूरत हाल को समझना होगा। उनके पास जाएं और कहें कि अरे मैंने देखा कि आपके ये सवालात हैं और शायद आप वाकई मेरी इज्जत नहीं करते। मैं वजह जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपको मेरी तरफ से किसी बुरे सलूक का सामना नहीं करना पड़ा। तो आखिर वजह क्या है? मुमकिन है कि वो कहें मेरा एक चचा था जो बज़ाहिर बहुत मजहबी था, लेकिन वो एक बुरा इंसान था, या उसने मुझे ऐसे ऐसे नुकसान पहुंचाया, या मैंने उन लोगों के generalize बहुत से कर बुरे देते हैं। रवैये देखे। वो इसे जनरलाइज कर कि देते जैसे हैं। उन्होंने अपने चचा को देखा तो तमाम मुसलमान ऐसे ही हैं। बिल्कुल। सब एक जैसे नहीं है। बिल्कुल। और अगर आप उनके मसाइल की तह तक पहुंच जाएं, खराबी की जड़ को ढूंढ लें, तो अगर वो दूर हो जाए तो सवालात भी खत्म हो जाएंगे, उनका ये तौहीन आमेज रवैया भी खत्म हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इंसान सिर्फ अकल पर चलने वाली मखलूक हैं। ये सोचें कि उनके पास दिल भी है, उनमें जज्बात भी हैं। अगर उन्हें जज्बाती तौर पर चोट पहुंची है, फिर अगर आप इस मसले को हल कर देते हैं तो फिर पूरा तासुब खत्म हो सकता है। दूसरा सवाल ये है कि मेरे दोस्त मुख्तलिफ अकायद रखते हैं। कुछ मामलात ऐसे भी पेश आते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आती कि अब मैं क्या करूं। मसलन वो मेरे मजहब के बारे में कुछ बुरा कहते हैं और मुझे समझ नहीं आती है कि मैं क्या करूं। मैं खामोश रह जाती हूँ, मैं जवाब नहीं देती। दरअसल मेरे पास अपने मजहब का इल्म है, लेकिन इतनी गहराई में नहीं है कि मैं उनके सवालात के जवाब दे सकूं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए और उनके साथ ताल्लुकात में क्या हुदूद होनी चाहिए? इसका दारो मदार उनके खलूस पर है। मैं नहीं जानता कि आपके ऐसे दोस्त हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपने बताया था कि बहुत से लोग मजहबी हैं, लेकिन शायद उनमें से कुछ ऐसे मकाम पर पहुंच चुके हैं कि वो अपने मजहब का मजाक उड़ाते हैं। जी हाँ, कुछ लोग सवाल करते हैं जैसे कि वो कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या उनके साथ ताल्लुकात में कुछ पाबंदियां हैं? सबसे पहले आपको अपने मजहब को बेहतर तरीके से जानना होगा ताकि आप उनके सवालात का अच्छे तरीके से जवाब दे सकें। बिलाशुबा ये एक चीज है। दूसरी अहम बात यह है कि मजलिस बहुत अहम चीज है, क्योंकि जब 4 या 5 अफराद आपस में बातचीत कर रहे हैं और सिर्फ मजहब का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक मजहबी इंसान हैं, और जब आप आते हैं तो वो खुद कोई सवाल दे मारते हैं या कुछ ऐसा कहते मेरा हैं, मजाक हंसते उड़ाते हैं, हैं। उसका मजाक उड़ाते हैं, फिर ये वक्त है कि आपको उनसे दूर हो जाना चाहिए। यकीनन आप सिर्फ अपने मजहब के लिए खड़ी होंगी। हाँ, आप संजीदा गुफ्तगू कर सकती हैं और उनसे मिल सकती हैं कि उस दिन आप ये बात कर रहे थे, मेरे पास इसका जवाब है। और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो जबरदस्ती जवाब देने की और जवाब बनाने की कोशिश मत करें, बल्कि कहते हैं कि मुझे इस मसले का तफसील से इल्म नहीं है, अलबत्ता मैं इसे देखूंगी, इसे ढूंढूंगी और फिर आपसे राब्ता करके इसका जवाब दूंगी इंशाअल्लाह। तो इन मसाइल से निपटने का ये एक संजीदा और दयानतदाराना तरीका है। क्या आपके साथ ऐसा कोई वाकया पेश आया?
جی ہاں، ہمارے مدرسے میں ایک بہن، ایک ملحد لڑکی ہر ہفتے ہمارے مدرسے میں آتی ہے. وہ اسباق میں شرکت بھی کرتی ہے اور وہ ہم سے کچھ سوالات بھی پوچھتی ہے. تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ ہر ہفتے مدرسے میں آتی ہے. تو میں واقعی میں حیران ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسے یہاں کا ماحول اچھا لگا ہے اور وہ یہاں آنا بھی چاہتی ہے. گرم جوشی والا ماحول. ہاں، گرم جوشی والا ماحول. تو وہ آنا چاہتی ہے اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے سوالوں کے جواب دیں. اگر ہم اپنے آپ کو اسلام کی مرضی کے مطابق چلائیں پھر ہمیں لوگوں کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگلا سوال. ابا جان، میرے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ اگر وہ زیادہ باعمل مسلمان بن جائیں، یعنی زیادہ مذہبی مسلمان، تو ان کی زندگی تو بورنگ اور محدود ہو جائے گی. تو ہم اس غلط فہمی کو کیسے دور کر سکتے ہیں، اور ہم خود بھی کیسے اسلام کو ایسی زندگی کے ساتھ ہم آہنگ کر سکتے ہیں جو تفریح سے بھرپور اور خوشگوار ہو؟ یہ تو آپ ہمیں بتا سکتی ہیں. کیا آپ کی زندگی خراب ہو گئی ہے یا آپ بور ہوتی ہیں؟ یقیناً اس میں بہتری آئی ہے، کیونکہ ہم مدرسے میں والی بال کھیلتے ہیں. ہم بہت اچھا وقت گزارتے ہیں. آپ کھیل کھیلتی ہیں ہے نا؟ جی ہاں، ہم حلال طریقے سے سارے کام کر سکتے ہیں. حقیقت میں تو میں وہ سب کچھ کر سکتی ہوں جو میں چاہتی ہوں. تو ہم باہر جاتے ہیں، اتنا ہنستے ہیں کہ پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح ہم بھی ٹورڈز ایٹرنیٹی میں ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں. ہم فٹ بال کھیلتے ہیں، ہم باسکٹ بال کھیلتے ہیں، ہم کچھ کھیل دیکھتے ہیں، ہم کچھ صرف جگہوں پر جاتے ہیں، ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ایک ساتھ کھیلتے ہیں، اور قسمیں اٹھائے بغیر، دوسروں کو رسوا کیے بغیر، غیبت کے بغیر، اور ان میں سے کوئی بھی برا کام کیے بغیر جو تعلقات کو خراب کرتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے درمیان الحمدللہ بھائی چارہ ہے، اور ارے میں آپ لوگوں کے درمیان بھی اخوت ہے، کیونکہ ایسے کسی جگہ پر جانا واقعی اچھا لگتا ہے جہاں آپ محسوس کرتے ہوں، جہاں آپ دوسرے لوگوں کی تکلیفوں سے سکون محسوس کرتے ہوں، اس لیے کہ ان میں وہ اخلاق ہے جو اسلام سکھاتا ہے، ان میں خدا کا خوف ہے. لہٰذا ان کی صحبت میں رہنے سے آپ کو ایسے سکون کا احساس ہوتا ہے جو کسی دوسری جگہ آپ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے. یہ معروف چیزیں ہیں، ہم یہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اگر آپ اپنے ایمان کی وجہ سے ان چیزوں کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ حلال دائرے کی وسعت کافی ہو جاتی ہے، حرام میں داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. پھر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں جو ایک لمبے عرصے تک مجھے پریشان کرتا رہا ہے. آپ کے خیال میں نوجوان اسلام کو بہتر طریقے سے کیسے سمجھ سکتے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم جتنے اچھے سفیر بن سکیں ہمیں بننا ہوگا، جیسے کہ فلسطین میں ہمارے بھائی اور بہنیں اس وقت برداشت کر رہے ہیں. یہاں تک کہ انتہائی مذہب مخالف لوگ، ملحد لوگ بھی اب اسلام پر غور کر رہے ہیں، اب متجسس ہیں، اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. ان میں سے کچھ نے تو اسلام قبول کر بھی لیا. جی ہاں بالکل. تو ایسا کیوں ہوا؟ انہوں نے انہیں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. روزہ اور نماز تو ہم بھی کر رہے ہیں. ہم انہیں متاثر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تابع ہیں، وہ ان کا توکل دیکھتے ہیں، وہ اللہ پر ان کا بھروسہ دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اس خوفناک ترین مصیبت کا سامنا کرتے ہوئے بھی الحمدللہ کہتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں؟ دل کی یہ طاقت، یہ ایمان کہاں سے آیا؟ جب آپ مذہب کی بہترین طریقے سے نمائندگی کرتے ہیں، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے ارد گرد موجود چیزوں پر اپنے رد عمل کے ذریعے، یہاں تک کہ اس سب سے خوفناک تباہی میں، تو یہ لوگوں کو متاثر کرتا ہے، یہ لوگوں کے دلوں کو حرکت دیتا ہے. ان کے ایمان نے الحمدللہ بہت سے لوگوں کو متاثر کیا ہے. جب وہ مارے گئے تو وہ شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے بہت سے لوگوں کے دلوں کو زندہ کیا. لہٰذا ہم اس کے بارے میں بھی حساس ہونے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. ہم کبھی بھی ایسی پروڈکٹس نہیں خریدتے جن کا بائیکاٹ کیا گیا ہے، اور آپ میں حساسیت ہے. اب میرے پاس آپ کے لیے ایک واقعی دلچسپ سوال ہے. آپ اپنے 18 سالہ خود کو کیا مشورہ دیں گے؟ 18 سالہ خود، یہ تصور کرنا واقعی بہت خوفناک ہے کہ اس بات کو 20 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں. جس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں 18 سال کا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ لوگ 50 یا 60 سال کے کیسے ہو سکتے ہیں، لوگ اتنی لمبی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں. میں نے یہ 18 سالہ زندگی گزاری ہے اور یہ ان چیزوں اور واقعات سے بھری ہوئی ہے، تو لوگ اتنی لمبی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں. اور اب ہم خود یہاں پر ہیں. میں اس دن کے بعد سے 18 سال سے زیادہ گزار چکا ہوں کہ میں اب 42 کا ہوں. لیکن آپ تو ابھی بھی ینگ ہیں. جی ہاں، مجھے یاد ہے کہ 15 سے 35 کی عمر کے درمیان میں نے بالکل قرآن نہیں کھولا تھا، سوائے جمعے کی راتوں میں سورہ یاسین پڑھنے کے لیے، کیونکہ 15 سال کی عمر کے بعد میں نے اپنی ترجیحات کھو دی تھیں. لیکن میں کہوں گا کہ اپنی ترجیحات کو درست رکھیں. یہ اس دنیا کے بارے میں نہیں ہے. میں ان دنوں امریکہ جانے کا ارادہ کر رہا تھا اور ممکن تھا کہ میں بطور ایک ڈاکٹر وہاں زندگی گزارتا. میرے تمام منصوبے اس دنیا کے لیے تھے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے اتنے سال ضائع کر دیے، کیونکہ جب میں نوجوان بھائیوں کو دیکھتا ہوں اور اوہرے میں نوجوان بہنوں کو کہ وہ 16، 17، 18 سال کی عمر میں وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، تو میں افسوس سے کہتا ہوں کہ میں نے یہ کیوں نہیں شروع کیا.
किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आप इसमें शरीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह। अफसोस है कि मैंने पहले शुरू क्यों नहीं किया। तो उन लोगों के लिए जो अब 18 साल के हैं, आपको बेहतरीन सरमायाकारी करनी चाहिए जो आखिरत है। तो आपका एक बेटा और एक बेटी है, बल्कि आपके 2 बेटे और 1 बेटी है, तो इनके दरमियान क्या फर्क है? किसकी परवरिश मुश्किल है और क्यों? यकीनन मैं अमूमी बात नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपने तजर्बे के बारे में बात कर सकता हूँ। लेकिन खास तौर पर जब करीम अब बड़ा हो रहा है, वो 12 साल का है, मैं कहूँगा कि वो आपसे थोड़ा ज्यादा शरारती है। क्योंकि हाँ, जब मैं उसे 5 बजे घर आने को कहता हूँ तो आप 5 बजे घर पर होती थी, जबकि वो मुझे 5:30 बजे फोन करता है, क्या मैं 15 मिनट मजीद खेल सकता हूँ? मैं कहता जी, ये हूँ, ओ हमेशा मेरे होता है। खुदा, वो हमेशा असूलों को तोड़ना चाहता है। असूल हैं भी वो तोड़ने के माफी लिए। मांगता है लेकिन फिर वही करने वो लगता माफी है। मांगता है और दोबारा वही करता है, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी चीज है कि वो ज्यादा खेलना और ज्यादा तफरीह करना चाहता है, वो मजे करना चाहता है। गोया जी उसके हाँ, अंदर मैं एक गेम मुत्तफिक मॉन्स्टर हूँ, मौजूद मैं है। वो इत्तेफाक वाकई करती हूँ इस इसे बात कंट्रोल से। में नहीं रख पाता। यहाँ देख के वो जख्मी होता है तब भी वो खेलता रहता है। उसका स्कूल 8:40 पर शुरू होता है और हमारा घर स्कूल के सामने ही है, और वो 7 बजे जागता है और फुटबॉल मुझे खेलने यकीन स्कूल नहीं चला आता। जाता है। तो वो बिल्कुल भी आपकी तरह नहीं लगता। आप हसास हैं, आप नज़्म ज़ब्त की पाबंद जी है, हाँ, वो तो मैं हूँ। और आप में ये अंदरूनी हौसला है। जब आपने पिछले साल इम्तिहान की तैयारी की थी, हमें आपको पढ़ने के लिए कहने की जरूरत नहीं होती थी कि प्लीज पढ़ लो ये और वो, नहीं, हमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। आप वाकई एक पुरजोश स्टूडेंट थी, एक मेहनती तालिबे इल्म, और आप अपनी जिम्मेदारियों को पहचानती हैं। हमने आपको कभी भी आपके किसी भी होमवर्क की याद नहीं दिलाई, लेकिन जहाँ तक क्रीम का ताल्लुक है, हम उसे हमेशा याद दिलाते हैं। इम्तिहानात आ रहे हैं, मैं नहीं जानता कि हम उसका क्या करेंगे, क्योंकि अगले 2 साल में वो इम्तिहान देने वाला है। लड़के आमतौर पर मजबूत होते हैं, वो पुरखतर चीजें, पुरखतर सरगर्मियां वो चाहते मोहनजू हैं। होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपका दिल ना टूटे या आपके साथ बहुत सख्त रवैया ना अपनाऊं। ठीक है, ये आखिरी सवाल मुझे पसीना नहीं आया, क्या ये कोई मसला है? जब आप यंग थे तो आपका सबसे क्या बड़ा मतलब? ख्वाब क्या अब मैं था? जवान नहीं हूँ? आप अभी भी यंग हैं, लेकिन ओके, मैं मजाक कर रहा था। क्या अब भी आपके ख्वाब वही हैं या फिर आपके अहदाफ और ख्वाब वक्त के साथ बदल गए हैं? यकीनन वो बदल गए हैं। जब मैं छोटा था तो मैं अमेरिका जाने का मंसूबा बना रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया, या किसी और मुल्क में बाहर जाकर आराम से जिंदगी गुजारने के लिए, और शायद कुछ अमीर होने के लिए, और दुनियावी आसाइशों के साथ अपने आप को मुतमईन करने के लिए। और अगर आज की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरजीहात 180 डिग्री तब्दील हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप जानती हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैंने टुवर्ड्स इटर्निटी को ज्वाइन किया, आप जानती हैं कि मैंने 13 साल बतौर डॉक्टर प्रैक्टिस की, और फिर मैंने जॉब छोड़ दी। बहुत से लोगों को ये वाकई मज़ाक़ खेज और पागलपन लगता था कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो सोचते थे कि मैं खुद को मुकम्मल महसूस नहीं कर रहा था, और और मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था। मेरी वालिदा के इंतकाल के 1 साल बाद मैंने बहुत दुआएं की। मैं काबा शरीफ किया और मैंने बहुत दुआएं की। काबे को देखकर पहले दुआ जी जो बिल्कुल। आपने मांगी पहली थी, बार जब वो मैंने काबा यही देखा, थी, है ना? मैंने कहा, ए अल्लाह, मुझे अपने दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। मैंने ये दुआ की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उस दिन से बहुत सी चीजें बदल दी। मेरी बीवी ने हिजाब पहनना शुरू कर दिया। इसके अलावा आप तीनों ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी, और हम आपने बाजमात हिजाब पहनना नमाज शुरू कर पढ़ने दिया, और अब आप इस्लाम की खिदमत कर रही हैं इटर्नल पैसेंजर के तहत। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जिंदगी के बेहतरीन 3 साल गुजार रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने टुवर्ड्स इटर्निटी को ज्वाइन किया है, पूरी तफसील के साथ, यहाँ तक कि छोटी से छोटी बात भी अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। यकीनन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मैं पीर हूँ या कुछ और, लेकिन जब आप मुखलिसाना तौर पर कुछ मांगते हैं और दिल से इखलास को दूर नहीं करते, तो फिर अल्लाह ताला जरूर अता फरमाता है। ये वाकई एक अच्छी गुफ्तगू थी मेरी बेटी, शुक्रिया। हमारे पास खूबसूरत सवालात थे। इंशाल्लाह अगली बार मुख्तलिफ सवालात के साथ हम आएंगे इंशाल्लाह। हमने एक गुफ्तगू अपनी बेटी सवाल के साथ इटर्नल पैसेंजर के लिए रिकॉर्ड की, और मेरा वक्त वाकई बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ये गुफ्तगू बहुत से लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी। अगर आप इस तरह के मजीद प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।